Okay. So in the first chapter we have seen the working of constitution, right? कि constitution कैसे काम करता है वो हम लोग ने देखा था. In the second chapter we have seen election process, के election के process कैसे held होते हैं, who has the right to held it, कौन decide करता है time table, वो सारा चीज देखा था. Now election में main क्या होता है? Political parties, right? कि कौन सी पार्टी खड़ी होती है, हम किसे वोट देते हैं. So third chapter is all about political parties. See, in the last chapter, we studied the working of constitution, that is the first chapter, and election procedure in the second chapter. Political parties are a link that connects common people, democracy, representation, and elections, right? कि political parties के वजह से बच्चा क्या होता है, एक link होती है कि common people government के through कैसे connected होता है, elections के process में कैसे connected होता है, जो हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी है उससे कैसे कनेक्टेड होता है. तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? एक लिंक होती है गवर्नमेंट और कॉमन पीपल के बीच में. Whatever we read or hear about politics is related to political parties. Political parties exist in all democratic systems. In fact, political parties compete with each other only in a democracy, right? कि जहाँ भी आप देखोगे democratic system है वहाँ पे you will find political parties. And इसमें क्या होता है? Political parties ये एक दूसरे के साथ compete करते हैं because last में कोई एक ही पार्टी जीतती है. तो ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ compete करते हैं. So in this chapter we will study the political party system in India. के हमारे इंडिया में political party system कैसी है वो हम देखेंगे. Is it clear बच्चा लोग? Any doubt so far? No, miss. Okay. In your school and the surrounding, you must have seen some groups, institutions, organization working to achieve some objectives. Some organization take initiative in resolving social problems. You may have read about the various movements and their work. Just as there are active groups, institutions, and movements, similarly there are political party who contest elections, right? कि हमारे स्कूल के वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई एक एनजीओ होता है या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या करता है? सोशल इशू पे काम करता है. जैसे कोई होता है कि जो रोड क्लीनिंग के लिए हेल्प करता है, कोई होता है जो डिसेबल पीपल के लिए हेल्प करते हैं. गणेश चतुर्थी के वक्त अगर आप देखोगे तो कोई होगा जो बीच क्लीनिंग के लिए काम करता है. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मोटिव होता है, राइट? दे हैव अ मोटिव कि हम ये सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो सिमिलरली बच्चा हमारे गवर्नमेंट में भी हमारे डेमोक्रेसी में भी वैसा ही होता है कि हमारे पास क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज क्यों फॉर्म किए गए होते हैं? कि वो एक इलेक्शन हेल्ड करते हैं, उनका भी एक सोशल मोटिव होता है. तो वो सारा चीज अब हम देखेंगे. सी, political parties are also a kind of social organization, but there is a difference between political parties and other institution and organization in society. So क्या difference है? Political party भी वैसा ही एक group है, but उनका और social organization का क्या फर्क है? See, the difference is in the goals and the style of working of political parties and other organizations. On this background, we can say that when people form organization with the objective of achieving political power and participate in the electoral process, such organizations are called as political parties. Political parties बच्चा हम किसे बोलते हैं? कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है. वो लोग क्या मतलब उनका एजेंडा क्या होता है, उनका मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव होता है कि हमें जो है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने, या हमें पॉलिटिकल पावर अचीव करना है, या हमें इलेक्टोरल प्रोसेस में अचीव कर. देखो हम लोग ने क्या देखा? वो ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो स्कूल के बाहर या वो सारे होते हैं, उन्हें हम इलेक्ट नहीं करते, राइट? वो खुद ही से फॉर्म हुए होते हैं. उनका एजेंडा कुछ अलग होता है, वो कुछ इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट नहीं होते. बट ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है बच्चा, इनका भी एम वैसा ही होता है, टू हेल्प पीपल. बट एट द सेम टाइम थोड़े अलग फैक्टर्स है. क्या अलग फैक्टर्स है? कि इन्हें हम पीपल वी इलेक्ट देम, राइट? वी सिलेक्ट देम.
मतलब क्या, हम उन्हें डिसाइड करते, लाइक हम मेजोरिटी के थ्रू, वोटिंग के थ्रू उन्हें लाते हैं पावर में। फिर उनका एजेंडा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनको पॉलिटिकल पावर अचीव करना होता है। कैसे अचीव करेंगे? इलेक्टोरल प्रोसेस में खुद को पार्टिसिपेट करके अचीव करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। क्लियर है बच्चा सो फार? Yes, miss. Yes, या तो miss. Yes, तो ये miss. तो ये क्या हो गया? ये पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन हो गया। ये वाले इसमें मेरे पास हाईलाइट का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग आपके बुक में मार्क कर सकते हो दैट व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। इट इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अचीव पॉलिटिकल पावर। कैसे अचीव करेंगे पॉलिटिकल पावर? खुद को इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करा के। एंड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे। पॉलिटिकल पार्टी, एक ही मिनट है बच्चा। Political parties thus can be described as a group of people who aim to contest election, win election and get power and establish the government of party। ठीक है, कि उनका मेन एम क्या होगा? कि उनको पावर में आना। तो कैसे पावर में आएंगे? इलेक्शन हेल्ड करेंगे, वो इलेक्शन में खुद को पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद अगर जीतेंगे तो ही उनके पास पावर आएगा, एंड वैसे वो अपनी बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी जो है, गवर्नमेंट पार्टी जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कि अभी आप पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, आपने इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट लिया है, तो क्या सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो इस पे भी बच्चा ध्यान दो। फर्स्ट इज टू बी इन पावर, राइट। सबका मेन एम वही होता है कि हम पावर में होने चाहिए, हमारे पास पावर होना चाहिए। So achieving power through election is the main objective of political party। के सबसे main objective कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या होगा बच्चा? कि हम पावर में आए। तो हम वो पावर में कैसे आएंगे? इलेक्शन में पार्ट लेके। सी दस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज compete with each other to get into power। there is nothing wrong in this competition, but the competition should be fair। कि बराबर है, सबको पावर में आना है तो कंपटीशन तो होगा, बट वो कंपटीशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी ऑन अ बेसिस ऑफ फेयर टर्म्स। फेयर टर्म्स के बेसिस पे होना चाहिए, सही मायने में उसको कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सबको क्लियर है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या होगा बच्चा? टू बी इन पावर, के हमें पावर में आना है, हमारे पास पावर होना चाहिए। इज इट क्लियर? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। Yes, miss. ओके, सेकेंड देखते हैं, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। अब पावर में आ गए पर उनके कोई एम्स हो गए, राइट, उनका कोई आइडियोलॉजी होगा, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। सी every political party has some policies and world views। Parties have a particular stand about social issues। This together make party ideology। ठीक है, कि हर एक पार्टी का अपना काम करने का तरीका अलग होता है। कोई सोशल इशू है तो उससे डील करने का तरीका अलग होता है, बिकॉज हर एक पार्टी में अलग अलग लोग होते हैं, उनकी थिंकिंग अलग होती है। सो एवरीवन हैज देयर ओपिनियन। सो द वे दे डील विद the things, or the way they deal with social issues, is together known as party ideology। के इसे हम बोलते हैं पार्टी का आइडियोलॉजी। मतलब क्या? बेसिक पार्टी का आइडिया क्या है सोशल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। The people who consider any specific party ideology as acceptable support that political party। Make sense? बराबर, कि अगर मुझे इनकी आइडिया पसंद आ रही है, ये लोग कैसे कर रहे हैं, मुझे वो अच्छा लग रहा है, तो I'll accept it। मतलब क्या? I'll support that party। मुझे उनका आइडिया, उनका काम करने का तरीका अच्छा लग रहा है, मतलब ही क्या? कि मैं वो पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। Social support received by a political party is called the mass base of political party। ठीक है, देखो, सोशल सपोर्ट रिसीव्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, और ये पॉलिटिकल पार्टी से जो सोशल सपोर्ट मिलता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? मास बेस। मास मतलब क्या? पीपल, लोग। लोग जिसे हम बोलते हैं पब्लिक, उसे हम बोलते हैं मास। और बेस मतलब क्या? एक बेस मतलब उनका सपोर्ट मिलना, वैसा। सो इन मॉडर्न डेज आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज appear to be similar, hence it has become difficult to differentiate between the parties and on the basis of ideology।
आइडियोलॉजीज, बट अब के टाइम में आप देखो तो सारे ही पार्टीज के आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसीलिए उनको उनमें से डिफरेंशिएट करना या किसे हम सपोर्ट करें वो थोड़ा जानना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो बच्चा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक समझा, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होता है? बेसिक जो एक सोशल प्रॉब्लम या सोशल इश्यू को डील करने का जो पॉलिटिकल पार्टी का तरीका होता है उसे हम बोलते हैं पार्टी का आइडियोलॉजी। तो उसे अचीव करना या उसे परस्यू करना, मतलब वही उसे अचीव करना या उसको मेंटेन करना हम बोलते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हिच इज टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। समझा सेकंड पॉइंट? Yes, miss. या तो ये Yes, तो हो miss. गया, या ये तो हो गया सोशल इश्यूज, ठीक है। मतलब सोशल इश्यूज को आप कैसे सॉल्व कर रहे हो ये वाला पार्ट हो गया। बट हर एक पार्टी का क्या होता है, हर एक पार्टी का खुद का एजेंडा भी होता है, राइट। सोशल इश्यूज तो सॉल्व करेंगे ही, बट अभी आप पावर में आए हो तो आपका एजेंडा, आपका मोटिव क्या है, तो वो एक थर्ड चीज होता है। पहले सोशल इश्यूज आता है, क्यों? बिकॉज आप पॉलिटिकल पार्टी हो तो आपको लोगों के फॉर बेनिफिट्स, लोगों के हित के लिए आपको काम करना है, तो उसको सेकंड में रखा गया है। बट लोगों के हित में काम करने के अलावा बच्चा योर एजेंडा भी, आपका भी कुछ एजेंडा होना चाहिए ना एज अ पार्टी। आपका एम क्या है, पहले के हिसाब से आप अभी का सिचुएशन कैसे इम्प्रूव करोगे, तो वो एक टैक्टिक्स या वो एक जो आपका मोटिव होता है उसे हम बोलते हैं एजेंडा। तो थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? टू हैव अ पार्टी एजेंडा, ठीक है। See, political parties prepare their party's agenda on the basis of party ideology. They implement the agenda after they get political powers. राइट, के खुद के पार्टी के आइडियोलॉजी के बेसिस पे वो क्या बनाएंगे, खुद का एक एजेंडा बनाएंगे। एंड वो एजेंडा को कब वो फुलफिल कर सकते हैं या कब उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, कब? जब वो उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा, मतलब कि क्या, जब वो मेजॉरिटी ऑफ वोट से जीतेंगे एंड जब वो पावर में होंगे, जब उनके पास पावर होगा बेसिकली, तब वो अपना एजेंडा पूरा कर सकते हैं। Even if they do not get political power, political parties try to get support of people on the basis of this agenda, right? कि अगर आप नहीं जीते, आपको वोट नहीं मिला, पर आपको एज अ पॉलिटिकल टीम तो लोग जानते ही है, राइट। अभी हम देखें तो बीजेपी अभी फोर फ्रंट में है, बट बाकी के टीम है, शिवसेना है, वो आम पार्टी है, तो सारे लोग काम तो करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते। सो वही यहाँ पे बताया कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में नहीं भी जीते, आपको पॉलिटिकल पावर नहीं भी मिला, तो भी वो काम छोटा मोटा, अपना एजेंडा छोटा मोटा पूरा करते रहते हैं। क्यों? सो दैट उनको लोगों का सपोर्ट मिले एंड मे बी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट इलेक्शंस में वो उन्हें जीता सके। इज इट क्लियर बच्चा? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक Yes, कौन miss. कौन? ओके, कौन कौन सा देखा? फर्स्ट देखा पावर में आना। पावर में आने के बाद क्या करेंगे? अपना एक आइडियोलॉजी होता है उसे परस्यू करेंगे। अपना आइडियोलॉजी परस्यू करने के बाद क्या करेंगे? अपना जो एजेंडा है, जो अपना मोटिव है, उसको फुलफिल करेंगे। अब है टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट। अगर मेजोरिटी ऑफ वोट से जीत गए, पावर में आ गए, तो खुद का गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये पॉइंट हो जाता है फोर्थ पॉइंट। Political parties establish the government and govern the nation. The political party which gets majority in election forms the government. The party which do not get majority acts as a opposition party. Simple logic, हमें पता है कि जो पार्टी जीत जाती है मेजोरिटी वोट से, उसका क्या बनता है? उसका गवर्नमेंट बनता है। एंड जो नहीं जीतती वो क्या हो जाती है? उसे हम बोलते हैं अपोजिशन पार्टीज। क्यों? बिकॉज वो उनके अपोज होती है या वो उनके अगेंस्ट होती है। सिंपल है, इतना कुछ नहीं। नेक्स्ट, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। इसके बाद, ये पॉइंट के बाद आइडियोलॉजी आपने परस्यू कर लिया, ठीक है। उसके बाद मेन क्या आ जाता है? टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, राइट। के गवर्नमेंट में अंदर क्या क्या डिस्कस हो रहा है वो हम लोगों तक कैसे पहुंचता है? बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज। तो इनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट और हम जैसे नॉर्मल लोगों के बीच में एक लिंक होना, ठीक है। सी, political parties work as a link between the government and the people.
Political parties communicate the demands and complaints of the people to the government. The government tries to get support of the people for its policies and programs to political parties. फिर वो क्या करती है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली हम कोर्ट में नहीं जाते, राइट, हम पेटिशंस करते हैं या सबके पास से ये बेसिक पेटिशंस करते हैं। मतलब ही क्या बच्चा कि समझो मुझे कोई प्रॉब्लम है, आप लोग ने देखा होगा लोग पेटिशन सॉल्व करते हैं। अभी जैसे ऑनलाइन अभी अभी का एक करंट एग्जांपल देख ले तो थिंग्स वर लाइक शुड वी स्टार्ट ऑनलाइन स्कूल और नॉट, परमिशन आया या नहीं आया, तो लोगों ने क्या किया, मतलब सारे पेरेंट्स ने निकाला कि एक पेटिशन के नहीं बच्चा हमें नहीं चाहिए, हमारा बच्चा स्कूल जाए, थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो सारे पेरेंट्स ने पेटिशन साइन किया। एंड फिर वो लोग एक किसी पार्टी के हेड को या उनको सबमिट कर देते हैं, फिर वो आगे गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं एंड फिर डिस्कशन पे डिस्कस होता है। मतलब ही क्या कि हमारे कोई भी डिमांड्स है या हमारा कोई भी कंप्लेंट है तो वो हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी जो अभी करंट में है उनके थ्रू लेके जाएंगे। फिर उनका काम क्या होता है कि वो जो मेन गवर्नमेंट है उन तक ये सारा डिसीजन लाए और फिर क्या मैटर है, क्या सोल्यूशन निकला, वो हम तक पहुंचाए। सो यही इसे ही हम बोलते हैं टू बी अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपल। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, दे ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर इट्स पॉलिसी एंड प्रोग्राम, एंड फिर वो कुछ ऐसा नया पॉलिसी या ऐसा कोई प्रोग्राम बनाती है जिससे हमारा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए एंड फिर हमारा सपोर्ट भी उन्हें मिले। इज इट क्लियर बच्चा सो फार? Yes, miss. Yes, miss. तो ये सारे क्या हो गया बच्चा, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया पॉलिटिकल पार्टी का, कि क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आप जिसे बोलते हो वो। अब हम देखेंगे चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया, के हमारे इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिटिकल पार्टीज बनी तो उस टाइम का सिस्टम कैसा था, अभी करंट सिचुएशन कैसा है, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में इंडिया में वंस वी गॉट इंडिपेंडेंस, वो पूरा हम अब देखेंगे। सी फर्स्ट, द कांग्रेस वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. Congress had a majority at center and in most of the states. Indian politics was controlled by the Congress party. This era was described as era of a single dominant party system. कि अगर आपने हिस्ट्री में, अभी तो 10th के हिस्ट्री में आपका पिछले साल का हिस्ट्री नहीं है, बट अगर आपने 8th 9th में देखा रहेगा तो वंस वी गॉट इंडिपेंडेंस ना बच्चा, उस टाइम पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही फोर फ्रंट में थी या सामने थी, ऐसे आप बोल सकते हो, पावर में थी। तो वही यहाँ पे बताया है दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस मिलने के जस्ट थोड़े पीरियड, मतलब 47 होगा तो 57 67 तक ये जो 10-20 इयर्स का प्रोसेस था ना, उसमें कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसको लोगों का मेजोरिटी वोट्स मिलता था एंड हर एक स्टेट्स में वही फोर फ्रंट में थी। सी एंड उस टाइम पे यही एक अकेली पार्टी थी, दैट इज व्हाई दिस इट इज नोन एज एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, के एक ही पार्टी थी जिसका डोमिनेंस सबके ऊपर होता था। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर बच्चा? एनीवन विद एनी डाउट सो फार? No, No, miss. miss. Okay. The non-Congress parties came together and challenged single dominant party in 1977. तो जैसे मैंने बोला 47 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, फिर 57, 67, 77 30 इयर्स तक पूरा क्या था, कांग्रेस का ही उस टाइम पे रूल था। बट फिर 1977 में कांग्रेस को छोड़ के जो बाकी सारे पार्टीज थी ना, उन्होंने क्या बोला कि अब हम ये जो कांग्रेस है उसको हम थोड़ा चैलेंज करते हैं एंड फिर उन्होंने ऐसे सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, मतलब यही जो ऊपर कांग्रेस को बताया है उसको चैलेंज करने का डिसाइड किया इन 1977. एंड आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शंस द सिस्टम ऑफ वन पार्टी emerging as a dominant party came to an end. फिर कभी 80 कहाँ पे 77 में उन्होंने डिसाइड किया था, बट उनको भी करते करते 10 इयर्स लग गए, ऑलमोस्ट 10 to 12 इयर्स लग गए। एंड फिर 1989 में बच्चा जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तब ये जो सिस्टम था कि हमेशा एक ही पार्टी रहती है एंड उनका ही डोमिनेशन होता है कंट्रीज पे, अरे स्टेट्स पे, वो खत्म हुआ। वो सिस्टम जो था इट केम टू एन एंड. Since then, different parties began to come together to form coalition government. तो उस टाइम पे क्या होता था, coalition government होता था। coalition मतलब क्या, दो पार्टी साथ में आके रूल करती थी वैसा।
So both the Bharatiya Janata Party and Congress Party made an experiment of establishing coalition government. The belief that coalition government brings instability was proved wrong by the political party system in our country. In fact, the coalition government system as established in India, the coalition government system as established in India, यहाँ पे कोई word का प्रॉब्लम होगा, बट उस टाइम पे लोगों को क्या लगता था कि कोलिएशन गवर्नमेंट जो होगा ना, वो अगर आया तो क्या आएगा, इंस्टेबिलिटी आएगा हमारे कंट्री में, बराबर है ना, क्योंकि एक पार्टी का रूलिंग का सिस्टम अलग होता है, दूसरी का रूलिंग का सिस्टम अलग अलग होता है, प्लस दोनों के आइडियोलॉजीज अलग होते हैं। तो उस टाइम पे लोगों को लगता था कि अगर कोलिएशन ये आया ना, गवर्नमेंट आया, तो क्या होगा, हमारे कंट्री में इंस्टेबिलिटी होगी, सारी चीजें स्टेबल नहीं रहेगी। बट ये क्या हुआ, ये रॉन्ग प्रूफ हुआ। एंड जब बीजेपी एंड कांग्रेस में कोलिएशन गवर्नमेंट में जब वो आए थे, तो उस टाइम का पीरियड अच्छा था। इनफैक्ट क्या बताया गया है कि कोलिएशन गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारे कंट्री से ही स्टार्ट हुआ। तो कोलिएशन गवर्नमेंट का एक बेसिक डेफिनेशन बच्चा आप ले लो, तो आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज अ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म jointly by more than one political party, के एक पार्टी को छोड़ के, लाइक 2 या 3 जब एक साथ मर्ज होती है, उसे हम बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे सिर्फ कांग्रेस थी, बट उसके साथ जब बीजेपी आई, तो उन्होंने दोनों ने क्या किया, खुद का कोलिएशन गवर्नमेंट बनाया। एंड वो लोग अच्छे से रूल कर पा रहे थे, इसीलिए ये जो लोगों का बिलीफ था कि इंस्टेबिलिटी आती है हमारे कंट्री में, वो क्या हुआ, वो रॉन्ग प्रूफ हुआ, क्योंकि वो लोग दोनों ही पार्टी अच्छे से रूल कर रहे थे। इज इट क्लियर सो फार? समझा बच्चा कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है? एंड पोस्ट Yes, miss. इंडिपेंडेंस, या पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अब तक क्या क्या पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था हमारे कंट्री में, वो समझा। 1988 तक क्या था, एक ही डोमिनेंट वाला सिस्टम था, डोमिनेंट पार्टी वाला सिस्टम था, विच वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट आफ्टर 89 लोकसभा के इलेक्शंस हुए, उसमें कोलिएशन गवर्नमेंट किसने फॉर्म किया, बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी ने। एंड वो फ्रूटफुली चला। एंड जो लोगों का डाउट था कि नहीं, कोलिएशन गवर्नमेंट से जो इंस्टेबिलिटी आती है, वो भी लोगों का रॉन्ग प्रूफ हो गया। सो अभी तक हम लोग ने 1989 तक देखा कि क्या क्या ये थे। अब हम देखते हैं, लेट अस नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो अभी तक तो हम लोग ने देख लिया, ठीक है, 1989 1990 तक कैसा सिस्टम था। अब कौन कौन सी नेशनल पार्टीज है हमारे पास, उनके बारे में हम देखते हैं। ये बच्चा कभी से ये किया है, लास्ट एडिट किया गया है, ये 13 दिसंबर 16 से किया, 2016 के। तो 16 के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आई होगी, तो उसका मेंशन यहाँ पे नहीं किया होगा, क्योंकि आपका जो बुक का पब्लिश वो ईयर 2016 है। तो 2016 तक जो सारी पार्टीज थी, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो द वेरी फर्स्ट, जैसे हम लोग ने देखा, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी फोर फ्रंट में थी, 20 to 30 years इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उनके बारे में हम देखते हैं। The Indian National Congress was established in 1885. At that time of its establishment, Congress was an all comprehensive movement working for national independence। कि ये बनी 1885 में, ओके, उसका एस्टैब्लिशमेंट 1885 में हुआ था, बट उसके पहले उनका एक ही मोटिव था कि हमें किसके लिए काम करना है, हमारे नेशन के इंडिपेंडेंस के लिए काम करना है। तो ऐसा नहीं, 1885 के पहले दे वर नॉट इन पिक्चर, दे वर इनटू द पिक्चर, बट उनका मेन एम क्या था उस टाइम पे, कि हमारे कंट्री को हम कैसे इंडिपेंडेंस दिलाए। Group with different ideologies has come together in this nationalist movement. After independence, the Congress emerged as the most dominant political party. जो हमने ऊपर देखा कि अभी पार्टी है, तो क्या होगा, अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ आएंगे एंड खुद का एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाएंगे। नेशनलिस्ट मूवमेंट क्यों, बिकॉज उस टाइम हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं मिला, मतलब पहले का बता रहे, तो इसीलिए नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पे बताया गया है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस बताया है क्या, आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे हम लोग ने देखा कि ये सबसे मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी। यहाँ तक समझा है बच्चा सबको? एनीवन विद एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, miss. Okay. The party from the beginning follows a policy of secularism, all-round development, equal rights and welfare for minorities,
एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जैसे हम लोग ने ऊपर देखा कि हर एक पार्टी का क्या होता है, हर एक पार्टी का एक एजेंडा होता है, एक एम होता है जो उन्हें फुलफिल करना होता है। तो यहाँ पे ये लोग ये जो पार्टी थी वो क्या एजेंडा थी उनकी, वो क्या कौन सा पॉलिसी फॉलो करते थे, सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म किसे बोलते हैं हम बच्चा? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म? कि जो रिलीजियस बेसिस पे आप बोलते हैं ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं या रिलीजियस बेसिस पे जो सेपरेशन होता है ना, उसे हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। तो इनका मेन पॉलिसी क्या था कि हम सेक्युलरिज्म फॉलो करेंगे, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए कि पूरे कंट्री का ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर तरीके से हर एक फैक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और जो माइनॉरिटीज है उनका भी अच्छा खासा वेलफेयर होना चाहिए। एंड जो डिसएडवांटेजेस सेक्शंस है, मतलब ही क्या, जो माइनॉरिटीज में आते हैं या उनके अंडर आते हैं, वो सारे जो डिसएडवांटेजेस सेक्शंस है उनका भी वो वेलफेयर कर सके, उनका भी भला कर सके। अकॉर्डिंगली कांग्रेस हैड ऑर्गेनाइज्ड वेरियस प्रोग्राम टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। अभी आपके ऑब्जेक्टिव्स है, आप उसे कैसे फुलफिल करोगे? तो आप नए प्रोग्राम्स लाओगे, नए लॉज लाओगे। तो वही पता है कि उन्होंने भी ये चीज अचीव करने के लिए नए नए प्रोग्राम्स लाए। The party believes in democratic socialism, social equality and international peace. And वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, सोशल इक्वालिटी को फॉलो करते हैं। सोशल इक्वालिटी क्या होता है कि हर तरीके से सोशल इक्वालिटी मतलब सोसाइटी में ऐसे अपर क्लास लोअर क्लास वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए। एंड इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस मतलब क्या कि हमारे कंट्री में क्या पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए। एंड सोशलिज्म हम लोग ने देखा, तो सोशलिज्म क्या बोलते हैं कि एक बेसिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारे कंट्री में। तो ये तीन उनके एजेंडा थे, ये आइडियाज को वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इंडिपेंडेंस के पहले सब लोग ने अपना एक ये ग्रुप है पीपल का जो अलग अलग आइडियोलॉजी से आए थे एंड उन्होंने नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया। बट इंडिपेंडेंस के बाद वो मोस्ट डोमिनेंट पार्टी थी, कौन से आइडिया को फॉलो करती है वो हम लोग ने देखा। फिर वो आइडिया को सॉल्व करने के लिए या सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने वेरियस प्रोग्राम्स लाए, वो हम लोग ने देखा। एंड हम लोग ने देखा कि उनका बेसिक आइडिया या किस तीन पॉलिसी को वो लोग फॉलो करते हैं, विच इज सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनल पीस। सो फार एनीवन विद एनी डाउट बच्चा? No, miss. या इनका सिंबल आप सभी को पता होगा, एक हैंड वाला जो फिंगर है वो उनका सिंबल। Now we will talk about Communist Party of India. This party was based on the communist ideology of India. Communist ideology, एक minute. This party based on the communist ideology was established in 1925. It is an old party in India. अगर आपको पता है तो पहले इंडिपेंडेंस के पहले दो तीन ऐसे आइडियोलॉजीज फेमस थे, एक था कम्युनिस्ट, एक था सोशलिज्म। तो ये सारे आइडियोलॉजीज वाले जो लोग थे ना, उन्होंने क्या की थी, अपनी खुद की पार्टी फॉर्म की थी। तो वैसे ही जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बिलीव करते थे उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उन्होंने अपनी पार्टी कब सॉल्व की थी, अरे कब बनाई थी उन्होंने अपनी पार्टी? 1925 में बनाई थी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले कौन थे? कैन एनीवन से मी दैट? कम्युनिस्ट किसका आइडियोलॉजी था? कार्ल मार्क्स का कौन सा आइडियोलॉजी था बच्चा लोग? कार्ल मार्क्स कौन से आइडियोलॉजी को बिलीव करते थे उस टाइम पे? चलो आप लोग ने ये सब हिस्ट्री में 8th 9th में पढ़ा है। कार्ल मार्क्स का कौन सा आइडियोलॉजी था बच्चा? सोशलिज्म ना, वो सोशलिज्म को फॉलो करते थे। Yes, फिर ma'am. अलग जो थे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो सोशलिज्म वाला कार्ल मार्क्स वाला था, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला है। तो जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था उसने अपना कम्युनिस्ट पार्टी बनाया। ये इंडिपेंडेंस के पहले की बात है, 1925 में। इट इज एन ओल्ड पार्टी इन इंडिया।
This party works for the welfare of laborers and workers. And इनका मेन एम क्या था कि जो लेबर्स है, जो वर्कर्स है, जो काम करते हैं, उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये पार्टी बनाई गई थी. तो इनका एम क्या हो गया? For the welfare of laborers and workers, this party was formed. The party opposes capitalism. और ये कैपिटलिज्म को अपोज करती है. कैपिटलिज्म पता है बच्चा क्या है? Do you know what do you mean by capitalism? No, one? miss. ओके देखो पहले के टाइम पे कैसे होता था. पहले देर वर रूलर्स. ओके वो क्या करते थे, जो अभी सपोज छोटे छोटे पीजेंट्स है या जो फार्मर्स है, उनकी लैंड होगी ना, वो खुद अपने नाम पे लैंड कर लेते थे. एंड ये फार्मर्स को बोलते थे कि आप उसके लिए काम करो एंड जो प्रोडक्शन आता है वो आप हमें दो, एंड उसके बदले में आपने सिर्फ जितना काम किया उसका एक सम अमाउंट हम आपको देंगे. तो ये हो गया कैपिटलिज्म के भाई वो फार्मर्स की खुद की जमीन है, वो अपना खुद प्रोड्यूस करेंगे एंड वो खुद रखेंगे. बट ये लोग क्या करते थे उस टाइम पे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो पीजेंट, जो बड़े बड़े नोबल्स थे, वो लोग क्या करते थे, उनके पास से लैंड ले लेते थे. एंड उस टाइम पे तो ऐसा कुछ लीगल कुछ था नहीं, तो उनके पास से ले लेते थे. एंड सिंस दे वर इन पावर, ये जो पीजेंट्स थे, ये जो फार्मर्स थे, ये जो वर्कर्स थे ना, इनको बेचारे लोगों को सहन करना पड़ता था. खुद की ही लैंड है, खुद का ही प्रोडक्शन है, बट वो पैसा उनको नहीं मिलता था. खाली जितना क्या बोलते हैं, मजूरी किया ना, जितना काम किया ना, उतना ही पैसा मिलता था. मजदूरी. तो ये आइडियोलॉजी को क्या बोलते हैं बच्चा? कैपिटलिज्म के. ये जो आइडिया है ना, उसको कैपिटलिज्म बोलते थे. तो इसके अपोज में थे कौन? ये पार्टी. बरोबर है ना, इसीलिए तो लेबर्स और वर्कर्स के लिए काम करती है. समझा आपको? इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, miss. या तो कार्ल मार्क्स का जो थियोरी था ना बच्चा, उनका था सोशलिज्म. तो वो क्या थियोरी लेके आए थे कि अगर आपका लैंड है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो आप प्रोडक्शन दूसरों को क्यों दे रहे हो? आप लोग हिम्मत में आओ ना, आप लोग सब एक साथ आओ, आप लोग आपके राइट्स के लिए लड़ो. तो वो लैंडलॉर्ड्स है वो भी डर जाएंगे. तो ये एक आइडिया लेके आए थे कार्ल मार्क्स. इसके लिए जो लेबर्स है, जो वर्कर्स है, उनमें वो बड़े ही फेमस है. क्यों? बिकॉज उनका वो आइडियोलॉजी था कि अगर आपका लैंड है, आपका प्रोडक्शन है, सो यू गाइस फाइट फॉर इट ना. आप क्यों आसानी से जाने देते हो? आप लोग सारे इकट्ठा हो, आप लोग खुद का एक टीम बनाओ, वैसा. तो कार्ल मार्क्स की ये आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की. तो ये जो पार्टी थी ना, ये कैपिटलिज्म मतलब ही वही. कैपिटलिज्म मतलब क्या? जिसका फार्म, जिसका लैंड है, उसको नहीं पैसा मिलता था, उसको प्रोडक्शन नहीं मिलता था, बट जो उस टाइम पे नोबल्स थे, प्रीस्ट थे, वो लेके जाते थे. तो ये आइडिया को ये पार्टी जो थी अपोज करती थी, एंड इसीलिए वो लेबर्स और वर्कर्स के लिए काम करती थी. The party leadership developed differences in 1962 over the issue of whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China और the Soviet Union. अभी 1962 में क्या हो गया, यही पार्टी में अंदर ही अंदर झगड़ा हो गया. क्या झगड़ा होने लगा कि कौन सा लीडरशिप हमें फॉलो करना चाहिए, कम्युनिस्ट चाइना का करना चाहिए या सोवियत यूनियन का. अभी ये दोनों ही पार्टी का आइडिया, मतलब ये दोनों ही आइडियोलॉजीज का एम एक ही होता है, बट थोड़े बहुत डिफरेंस है. तो ये पार्टी के अंदर ही अंदर उसमें झगड़ा होने लगा कि हमें कौन सा लीडरशिप फॉलो करना चाहिए, कम्युनिस्ट चाइना वाला या सोवियत यूनियन वाला, ऐसे. एंड इसीलिए दिस लेड टू द स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड अ सेपरेट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, व्हिच फॉलोज मार्क्सिस्ट वाज फॉर्म. तो अभी समझा? तो ये दोनों के बीच में ऐसे डिफरेंस होने लगा, एंड ये जो पार्टी थी वो स्प्लिट हो गई दो भाग में. एंड जो हमारे इंडिया में अभी चलती है वो कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. और ब्रैकेट में मार्क्सिस्ट क्यों लिखा है? जो कार्ल मार्क्स का थियोरी फॉलो करती है वो. तो कार्ल मार्क्स, इसके लिए मार्क्सिस्ट लिखा है. इज इट क्लियर बच्चा लोग? Yes, सबको miss. समझा? ओके. Yes, miss. या तो ये वैसा था कम्युनिस्ट What पार्टी all are ऑफ. going on, three? Egan your mic. या
तो ये वाला सिस्टम था। अब हम देखेंगे थर्ड पार्टी विच इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और इनका सिंबल देखो बच्चा, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनका सिंबल ऐसे था। क्यों? बिकॉज ये लोग लेबरर्स और वर्कर्स और फार्मर्स के लिए काम करते थे। तो फार्मर का एक बेसिक टूल वैसा, ये जो मतलब वो जो गार्डनिंग टूल है वैसा, एंड वो लोग उगाते हैं क्रॉप्स टिप्स, वैसे तो वो पीसेंट के क्रॉप्स का स्ट्रक्चर वैसा सिंबल कम्युनिस्ट पार्टी का था। इज इट क्लियर बच्चा लोग? Yes, miss. Okay, now we will quickly see Bharatiya Janata Party. So BJP is an important party at the national level. Bharatiya Jan Sangh was established in 1951. कभी established हुआ था 1951 में। तभी कैसे मतलब कैसे नाम था उनका? भारतीय जन संघ. This party was merged with Janata Party that was established in 1977. And 77 में इन्होंने क्या किया? दूसरी पार्टी जो थी एक जनता पार्टी करके, उसके साथ खुद को मर्ज किया, खुद को ज्वाइन किया। बट जनता पार्टी कुड नॉट सरवाइव। बट ये जो जनता पार्टी थी, जो दूसरी पार्टी जिसके साथ उन्होंने मर्ज किया, वो ज्यादा देर नहीं रह पाई। देयर वाज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड भारतीय जन संघ, द कंपोनेंट पार्टी ऑफ जनता पार्टी, एस्टैब्लिश्ड अ न्यू पार्टी इन 1980, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। तो वो जो थी नई पार्टी जनता पार्टी, वो तो चली नहीं। तो ये जो पहले वाले थे हमारे भारतीय जन संघ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा? भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी का पहले नाम क्या था? भारतीय जन संघ था 1951 में। फिर उन्होंने दूसरे पार्टी के साथ मर्ज किया, जनता पार्टी 1977 में। बट वो जनता पार्टी ज्यादा देर तक नहीं चली। तो इन्होंने क्या किया? भारतीय जन संघ ने एक नई पार्टी बनाई 1980 में जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, विच इज बीजेपी, जो अब तक वैसी की वैसी ही है। इज इट क्लियर बच्चा लोग? समझा पूरा उसका पार्टी का हिस्ट्री? Yes, miss. या अभी पार्टी का एम क्या है? सी, द पार्टी स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस, के जो हमारा इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशंस है, वो कायम वैसा ही रहना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन तक भी वैसा ही पहुंचना चाहिए। उसको प्रोटेक्ट करने का ये जो एजेंडा था वो बीजेपी का था। द पार्टी गिव्स इम्पोर्टेंट टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के इकोनॉमी वाइज हम कैसे नए नए इम्प्रूवमेंट्स हमारे कंट्री में ला सकते हैं, वो भी इसके ऊपर भी बीजेपी ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। अब जो हम लोग ने ऊपर देखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो पार्ट में, मतलब एक पार्ट में टूट गई थी। जो इंडिया में हम फॉलो करते हैं वो थी मार्क्सिस्ट थियोरी, जो मैंने आपको बताया कार्ल मार्क्स के थियोरी के ऊपर। तो उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। उनका सिंबल भी वैसा ही है, वो इंस्ट्रूमेंट, बट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के साथ क्रॉप्स थे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यू हैव समथिंग लाइक दिस हथौड़ा वाला स्ट्रक्चर वैसा। See, this party proclaims socialism, secularism and democracy. Socialism जो मैंने बताया, कार्ल मार्क्स सर ने कौन सा थियोरी लाया था? सोशलिज्म का, कि अगर आपका लैंड है, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप लड़ो ना उसके लिए, आप क्यों लोगों को दे देते हो? तो ये जो आइडिया थी उसे हम बोलते हैं सोशलिज्म, जो किसने लाई? कार्ल मार्क्स ने लाई। इसीलिए पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट मार्क्सिस्ट। तो ये लोग का फर्स्ट एम क्या आएगा? सोशलिज्म आएगा, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। द पार्टी अपोज इंपीरियलिज्म, वही के जो इंपीरियलिज्म है ना, कि भाई लैंड लॉर्ड्स है, हमारा लैंड ले लेंगे, ये आइडिया को वो क्या करता था? अपोज करता था। पार्टीज पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, और मेन एम भी वही है, पहले पार्टी जैसा ही है, कि मेन एम क्या है? जो वर्कर्स है, जो फार्मर्स है, एंड जो लैंडलेस लेबरर्स है, कि लेबर्स है बट उनकी खुद की जमीन नहीं है, ऐसे लोगों के इंटरेस्ट में काम करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। इज इट क्लियर बच्चा लोग? एवरीवन Yes, समझा miss. है? ओके। बहुजन समाज पार्टी, नाउ ये अलग पार्टी है, उसके बारे में हम देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, ये भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ही फॉलो करती है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी फॉलो करती है। In 1984, the party was established with the objective of protecting the interest of the majority. Scheduled caste, scheduled tribes, religious minorities, and other backward classes together constitute a majority. अभी जो ऊपर वाली क्लास थी,
सॉरी ऊपर वाली पार्टी थी वो भी सोशलिज्म को फॉलो करती थी, बट इनका मेन एम क्या था बच्चा कि ये वर्कर्स थे, फार्मर्स है, लैंडलेस लेबर्स है, उनके भले के लिए काम करते थे। अब ये बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को ही फॉलो करती है, बट इनका मेन एम क्या है कि ये जो मेजोरिटी क्लास है, अभी मेजोरिटी किसे आप बोलोगे, जो शेड्यूल कास्ट हो गए, जो शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, एससी हो गया, एसटी हो गया, फिर जो अलग अलग रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गए, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, मेजोरिटी बोलते हैं। तो पार्टी क्या काम करती है कि इनके लिए, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पार्टी काम करती है। सी द पार्टी एम्स टू गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ मेजोरिटी, के उनका भी, इनके पास भी पावर आए इनके। और होता है ना, आप अगर हर कॉलेज में जाओ तो इनके लिए अलग अलग सीट्स रिजर्व होती है, इट इज फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी, तो मतलब ये राइट्स उन तक पहुंचे, इसका काम कौन करती है, बहुजन समाज पार्टी। इनका सिंबल आप देखो तो एलिफेंट है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, miss. Okay. Nationalist Congress Party. In 1999, there was a split in the Congress Party and a Nationalist Congress Party was established. ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऊपर देखा वही है, बट 1999 में वापस ये पार्टी जो थी वो स्प्लिट हो गई थी। तो जो दूसरा पार्ट स्प्लिट हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, वो दूसरे पार्टी को हम बोलते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। उनका सिंबल क्या था, उनका सिंबल ये वॉच है, और पहले वाले का क्या था, उनका सिंबल हैंड था। The party believes in the values of democracy, equality and secularism। के हर एक पार्टी का बच्चा ये तीन एम तो होता ही है कि कंट्री में डेमोक्रेसी रहे, इक्वालिटी रहे और क्या, मेन सेक्युलरिज्म रहे। See, the party was in power in 1999 to 2014 in coalition with Congress Party, के कांग्रेस पार्टी से ही स्प्लिट हुई थी। एंड ये कितने कितने तक फोर्स में थी, मतलब कितने तक लाइमलाइट में थी, 1999 से 2014 तक। Nationalist Congress Party for a long period was also a part of coalition government led by the Congress at center from 2004 to 2014। मतलब ही वही कि जो कोलिएशन गवर्नमेंट उन्होंने कांग्रेस के साथ बनाया था वो कितने टाइम तक चला था, 2004 से 2014 तक, मतलब ऑलमोस्ट 10 years। नेक्स्ट, तृणमूल कांग्रेस, ये एक अलग पार्टी थी। ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998। कभी बनाई गई थी, 1998 में। इलेक्शन कमीशन गेव द पार्टी रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी इन 2016। अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम हम लोग ने चैप्टर में देखा था कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, वो इलेक्शन ये करती है, कब होने वाला है वो डिसाइड करती है। एंड उनका एक फीचर क्या था कि पार्टी को रिकॉग्निशन देना, लोगों तक पहुंचाना भी उनका काम होता है। तो ये तो पार्टी 1998 में ही बन गई थी, बट इलेक्शन कमीशन ने उसको रिकॉग्निशन कब दिया, एज अ नेशनल पार्टी। नेशनल मतलब क्या, पूरे लेवल पे कब पार्ट ले सकती है वो, मतलब ऐसा नेशनल पार्टी कब उसको रिकॉग्निशन दिया, 2016 में। The party supports democracy, secularism and protection of interest of weaker sections of India। ये जो weaker section है जो हम लोग ने यहाँ पे देखा, majority वाले पार्ट है, उनके भी इंटरेस्ट के लिए, मतलब उनके जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये पार्टी करती है। इज इट क्लियर बच्चा लोग सो फार? Yes, miss. Yes, miss. या ओके, यहाँ पे क्या दिया है, अलग अलग पार्टीज दी है, और उनके 2009 में उनको, उन्होंने कितने सीट्स जीते थे वो एक स्ट्रक्चर दिया है, एंड 2014 में उन्होंने कितने सीट्स जीते थे वो एक स्ट्रक्चर दिया है। तो अगर आप देखो तो नेशनल कांग्रेस 2009 में 206 वोट से जीती थी, बट वही 4-5-6 साल बाद 14 में 44 वोट से ही जीती। बीजेपी अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा हाई में कौन है, अभी अगर आप देखो तो बीजेपी ही है यहाँ पे, जिसने 2009 में 116 वोट से ही जीता था, बट 2014 में उससे ज्यादा उनके वोट्स बढ़े। बाकी के आप देखो तो पहले ज्यादा थे फिर कम हुए, पहले ज्यादा थे फिर कम हुए, पहले ज्यादा थे फिर तो हुए ही नहीं, एंड पहले कम ज्यादा थे फिर कम हुए। बट अगर आप ये नंबर देखो बीजेपी का तो ये कांस्टेंट बढ़ता ही जा रहा है। इज इट क्लियर बच्चा? सारे पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग ने देखे। एनीवन विद एनी डाउट सो फार? किसी का आइडियोलॉजी नहीं समझा मिस। वैसा कुछ है? ओके,
You must be reading different news in newspaper. Through these news items, we get information about various parties existing in different states of India, right? कि न्यूज़पेपर के थ्रू भी हमें नई नई आइडिया मिलती है कि हर एक स्टेट में जो सारी पार्टी है उनका क्या अभी करंट स्टेटस है वो हमें समझता है, उनका क्या अपडेट है वो हमें समझता है. So with the help of such questions, we will try to get information about various regional parties in India. We will study some of the regional parties from different parts of the world. तो क्या क्वेश्चंस है? Do this party function only at state level? के कोई कोई पार्टी होती है जिसको, जैसे हम लोग ने अभी ऊपर देखा कि इसको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन कभी मिला 2016 में. तो इसके पहले ये पार्टी क्या थी? सिर्फ स्टेट पार्टी थी कि हर एक स्टेट के वाइज ही compete कर सकती है, नेशनल लेवल में compete नहीं कर सकती है. तो यहाँ पे वही बताया है that do this party function only at state level. ये जो सारी पार्टीज है क्या वो सिर्फ स्टेट लेवल में ही एक दूसरे के साथ compete करती है? Some state leaders are influential at national level. So while some have influence only at state level, why it is so? कि कोई कोई leaders जो होते हैं उनको नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलता है, बट कोई जो लीडर्स है उनको सिर्फ स्टेट लेवल पे ही रिकॉग्निशन मिलता है. तो ऐसा क्यों, वो सब अब हम देखेंगे. See, in India, we find people speaking different languages and having different traditions and culture, right? हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप देखोगे तो you will find different traditions, you will find different cultures, people speaking with different language, different foods. हर एक culture हमारा नया है और अलग है. They belong to different parts of India. We see different regions having their own language, right? हर एक region में खुद खुद की भाषा बोली जाती है. You have already studied different geographical regions in Maharashtra. In Maharashtra, there exists geographical and cultural diversity. Maharashtra is different from Madhya Pradesh and Karnataka, right? कि महाराष्ट्र में पर अगर आप देखो तो उसके अंदर भी क्या है? We have different culture and we have different geographical diversity. जैसे महाराष्ट्र है वो मध्य प्रदेश जो एमपी साइड है उससे अलग है. क्यों? बिकॉज वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, यहाँ की लैंग्वेज अलग है. एंड अगर आप कर्नाटका से भी कंपेयर करो तो वहाँ की लैंग्वेज, स्पीकिंग लैंग्वेज अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है. वेयर इन महाराष्ट्र द कल्चर इज डिफरेंट. So the feeling of affinity developed about our language and region gradually turns into the identity consciousness and finally gives rise to regionalism. People start thinking primarily about the interest and development of their own region. और यही जो फीलिंग है ना कि भाई हमारा रीजन बाकी सारे रीजन से अलग है, बिकॉज यहाँ पे बोलने की भाषा अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है. तो इसी से लोगों के बीच में, लोगों के अंदर क्या होता है बच्चा? रीजनलिज्म होता है. व्हाट डू यू मीन बाय रीजनलिज्म? कि अपने रीजन के लिए कुछ करने की इच्छा, वैसा. सी, and development of their own region. They start feeling proud of their language, literature, traditions, history of social reforms, education, and cultural movements. And this give rise to the development of linguistic identity. ठीक है, कि इसी से क्या होता है, हम लोग ने देखा कि लोगों को क्या लगता है, खुद के लैंग्वेज के लिए प्राउड फीलिंग आती है कि भाई हमारा लैंग्वेज है, हमारा हमारा जो मदर टंग वाला लैंग्वेज है वही ये कंट्री में, वही ये स्टेट में बोला जाता है. फिर आपको आपके ट्रेडिशंस के ऊपर अच्छा लगता है. यू फील प्राउड अबाउट योर ट्रेडिशंस. आपके जो कल्चरल मूवमेंट्स है, जो सोशल फेस्टिवल्स है, वो सारे को ही देख के आपको एक क्या लगता है? लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होता है. डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी. लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है बच्चा लोग? व्हाट डू मीन बाय लिंग्विस्टिक? लिंग्विस्टिक हम किसे बोलेंगे बच्चा? languages. लैंग्वेजेस. परफेक्ट. लिंग्विस्टिक मतलब क्या? जो सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं. लिंग्विस्टिक इज बेसिक लैंग्वेज आप बोल सकते हो. तो यहाँ पे क्या बताया है कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी मिलती है. जैसे आप महाराष्ट्र देखो तो यहाँ पे यू नो दैट मराठी स्पीकिंग भाषा है, वैसा. तो एक रीजन को आइडेंटिटी मिल गया, एक स्टेट को आइडेंटिटी मिल गया. क्या आइडेंटिटी मिल गया? कि वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है. तो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इज जो भाषा वहाँ पे बोली जाती है उस भाषा से वो स्टेट आइडेंटिफाई होगा. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, miss. ओके.
Yes, Regional yes. identity develops from the consciousness about the development of a region and the feeling that people belonging to the region have claim over resources and employment opportunities. और ये feeling आप में कब बढ़ती है? जब आप देखते हो कि आपका जो region है वो अच्छा खासा डेवलप्ड हो रहा है, रिसोर्स वाइज डेवलप हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट वाइज डेवलप हो रहा है, लोगों को अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अच्छे जॉब्स मिल रहे हैं। वो सारे फीलिंग को देख के आपके अंदर ये जो रीजनल लव है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, वो आइडेंटिटी आपकी बढ़ती है। See, whether linguistic, regional, cultural, and other identities when linguistic, regional, cultural, and other identities get connected, regional consciousness emerges as a stronger feeling. Sometimes it gives rise to independent political parties और प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट। एंड इसी वजह से क्या होता है बच्चा, कभी कभी नई नई पार्टीज बनती है, या तो कभी कभी अलग अलग पार्टीज या अलग अलग मूवमेंट्स जो है उनके ऊपर प्रेशर भी आता है। तो नई नई पार्टीज बनती है वो तो ठीक है, प्रेशर कैसे आता है? सपोज कोई वो लैंग्वेज बोलने वाला पार्टी नहीं होगा या उनके अंदर वो लैंग्वेज बोलने वाले पार्टी के मेंबर्स नहीं होंगे, तब उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। So all such development aims at the protection of interest of region, but सबका मेन हेतु, सबका मेन एम क्या होता है कि उनको रीजन का डेवलपमेंट करना है। तो अभी हम लोग ने कौन से देखे बच्चा? नेशनलिस्ट पार्टीज देखे। देखो अगर आप यहाँ पे जब पार्टी स्टार्ट हुई, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दीज आर नेशनल पार्टीज जो ओवरऑल पूरे कंट्री में फेमस है। बट नाउ वी विल सी रीजनल पार्टीज, जो हम लोग ने देखा पर्टिकुलर रीजन में होती है, वो अब हम देखेंगे। See, regional parties are those groups in the region who have the proud feeling about the different identity of the region and who competes to get political power with the objective of regional development। के इनका एम क्या होता है कि ये अपने रीजन का डेवलपमेंट कैसे है वो देखे, पूरे कंट्री का नहीं देखते ये लोग। ये क्या करते हैं, हमारा जो रीजन है उसका डेवलपमेंट कैसे हो वो चीज देखते हैं। The influence of a regional party is limited to a particular region and उनका influence, उनका power कितना तक limited होगा? सिर्फ अपने रीजन तक ही लिमिटेड होगा। रीजन के बाहर वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही रहेंगे, बट रीजन में उनका इन्फ्लुएंस, उनका पावर रहेगा। Though they play a significant role at the regional level, the influence national parties as well। बराबर, रीजन के लिए ही काम करते हैं, बट उनका इन्फ्लुएंस मतलब ही उनका पावर थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स पे भी हो सकता है। अभी इसके एग्जाम्पल में अगर आपको दूं, सो हमारे स्टेट में कौन से है, वी हैव डिफरेंट लीडर्स राइट, जो स्टेट वाइज ही लिमिटेड है, बट उनको नेशनल पार्टीज में भी माना गया है। उन तक मतलब उनका एक इन्फ्लुएंस है, उनको लोग जानते हैं वैसा। सो उनका पावर रीजन तक ही लिमिटेड होता है, बट नेशनल पॉलिटिक्स में उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है। Regional parties give preference to the resolution of regional problems। बराबर, नेशनल पार्टीज थी तो वो नेशनल इश्यूज को देखेंगी। रीजनल पार्टीज क्या करते हैं, जो उनके रीजन में जो सारे प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का काम करती है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन दे डिमांड मोर ऑटोनॉमी एंड ऑथोरिटी। ऑटोनॉमी मतलब क्या, कि उनके पास ज्यादा पावर आना चाहिए। ऑटोनॉमी इज एक पर्सन के पास पावर होना। तो वो क्या बोलती है कि हमारे रीजन के डेवलपमेंट के लिए मेरे पास ज्यादा पावर होना चाहिए। मेरे पास मतलब किसके पास, जो वो पार्टी होगी या जो गवर्नमेंट होगा उनके पास। दो दे कोऑपरेट विद फेडरल गवर्नमेंट, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ऑटोनॉमी। के वो ऊपर जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है उनके साथ तो फॉलो अप करती ही है, बट एट द सेम टाइम वो खुद के ऑटोनॉमी को मतलब क्या, खुद के पावर को भी प्रोटेक्ट करती है। Regional parties make several demands such as regional problems should be resolved at regional level. Political power should be in the hands of people from region, and residents of the region should get preference in administrations and job। तो वो अभी क्या डिमांड करते हैं, ऊपर वाले पार्टी ने, हम लोग ने देखा उनका एम क्या होता है, कंट्री में सेक्युलरिज्म होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। बट रीजनल पार्टीज क्या करती है बच्चा, वो क्या एम करती है कि हमारे रीजन में जो प्रॉब्लम है वो रीजन बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे सॉल्व होने चाहिए। मतलब क्या, बड़े लेवल पे सॉल्व होने चाहिए। एंड हमारे
वहाँ के जो लोग हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, उनके पास पॉलिटिकल पावर होना चाहिए। एंड यहाँ के लोगों को अच्छी खासी जॉब्स और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ही क्या, गवर्नमेंट में भी थोड़ा बहुत पावर या मतलब उनका भी पार्ट लेने का एक ऑप्शन होना चाहिए। इज इट क्लियर बच्चा सो फार? समझा है Yes, सबको? miss. Yes, रीजनल miss. पार्टी। ओके, अभी हम लोग ने ऊपर क्या देखा, नेशनल पार्टीज के बारे में देखा एंड उनका चेंजिंग नेचर क्या था, कि इंडिपेंडेंस के बाद उनमें क्या क्या बदलाव आए वो अभी हम लोग ने देखा। तो अब हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोग ने रीजनल पार्टीज देखे। तो इंडिपेंडेंस के बाद रीजनल पार्टीज में क्या क्या चेंजेस आया वो अब हम देखेंगे। रीजनल पार्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, के जैसे नेशनल पार्टीज भी पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद स्टार्ट हुई थी, रीजनल पार्टीज भी वैसे ही स्टार्ट हुई थी। However, over the year, their nature and role has changed significantly. क्या क्या उनके roles है वो अब हम देखेंगे। See, initially, regional identities gave rise to separatist movement. The demands for independent Khalistan, Dravidistan were made with the objective of parting from Indian Federation and exist as an independent state. Regional parties from Punjab, Tamil Nadu, and Jammu and Kashmir have made such डिमांड्स के। पहले के रीजनल पार्टीज के डिमांड्स थोड़े अलग थे। अभी के हम लोग ने देखा कि वो क्या करते हैं, रीजन के बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। बट पहले के लोग जो थे, रीजनल पार्टीज, वो क्या करते थे कि भाई हमको एक अलग ही स्टेट ऐसा घोषित कर दो, इंडिपेंडेंस के पहले वैसा। तो वैसे उस टाइम पे तो हो नहीं सकता था ना, तो वो खुद खुद के छोटे छोटे मूवमेंट्स लेके आती थी, जैसे ये खालिस्तान मूवमेंट हो गया, ये द्रविडिस्तान मूवमेंट हो गया, ये सारे वैसे ही मूवमेंट थे। तो क्या बोलते थे कि हमको खुद, हम लोग हमारे स्टेट को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दो वैसा। तो कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने ये किया था, पंजाब था, तमिलनाडु था, जम्मू कश्मीर था, उन्होंने ऐसे डिमांड्स किए थे कि हमको हमारे स्टेट को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट आप अनाउंस कर दो वैसा। So this was first point. Second is the demands of regional parties gradually change, but धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद उनके डिमांड्स चेंज होने लगे कि आप ऐसा डिमांड नहीं कर सकते कि भाई इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दो, दिस इज रॉन्ग। तो फिर क्या उनके चेंजेस आए वो अब हम देखते सी। Instead of having an independent state, they started demanding more autonomy. This was the second stage in the development of regional parties, और ये कब हुआ था, 1990 में। इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड उन्होंने बंद किया, बट उन्होंने क्या बोला, मोर ऑटोनॉमी। मतलब क्या, कि हम हमारे ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है उसको आप थोड़ा ज्यादा पावर दो। तो ये वाला पॉइंट कभी का है, ये थोड़ा 1990 का है। ठीक है, अभी हम थर्ड वाला देखते हैं। तो इंडिपेंडेंस के पहले हम लोग ने देखा ये छोटे छोटे मूवमेंट्स होते थे, खालिस्तान, द्रविडिस्तान, वैसे जो क्या डिमांड करते थे कि हम लोग को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट डिमांड कर लो, अनाउंस कर दो। फिर 1990 का पीरियड आया, तब लोगों ने इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड बंद किया, पर कौन सा डिमांड स्टार्ट किया, कौन सा डिमांड स्टार्ट किया, मोर ऑटोनॉमी का डिमांड स्टार्ट किया। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। द रीजनल पार्टीज डिमांडेड दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, पीपल फ्रॉम रीजन शुड गेट पावर एट द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल शिवसेना, तेलुगु देशम एक्सेट्रा। फिर उन्होंने क्या डिमांड किया कि ठीक है भाई, हमारा डेवलपमेंट तो होगा, बट हम लोग को पावर किससे मिलना चाहिए, सी पीपल फ्रॉम रीजन शुड गेट पावर एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। बट हमारे वहाँ के जो लोग हैं उनको आप पावर दो ना, कि थोड़ा स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक उनको आप पावर दो। तो ये डिमांड्स आने लगी। ये डिमांड्स कब आने लगी, इट वाज ड्यूरिंग द 1990 के बाद वाला पीरियड। एंड कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है पार्टीज की दी है, तो शिवसेना है, तेलुगु देशम है, ये सारी पार्टीज ने वैसे डिमांड किया। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज इन नॉर्थ ईस्ट शोज अ ट्रेंड। दे गेव अप द डिमांड ऑफ सेपरेटिज्म एंड हैव स्टार्टेड डिमांडिंग ऑटोनॉमी। The regional parties from northeast are now entering into mainstream of national politics. पर जो नॉर्थ ईस्ट है, मतलब हमारे मैप का जो ये वाला पार्ट है, ये वाले कंट्रीज ने क्या किया, उन्होंने ये स्टॉप किया कि भाई आप हमें इंडिपेंडेंट स्टेट मत दो, चलेगा, हम लोग को ज्यादा पावर दो। तो ज्यादा पावर मतलब दे डिमांडेड मोर ऑटोनॉमी, मोर पावर। एंड इसके थ्रू क्या हो गया, ये सारे जो पार्टीज थी वो क्या होने लगी, नेशनल पॉलिटिक्स में
आने लगी, फोर फ्रंट में आने लगी। तो ये सारा चेंजेस था बच्चा रीजनल पार्टीज में। इज इट क्लियर सो फार? एवरीवन समझा रीजनल पार्टीज में क्या Yes, क्या miss. चेंजेस है? Yes, ओके। miss. Okay, so in short, we can say that the role of regional parties in India have passed through various phases, right? पहले तो वो लोग ने क्या किया, पहले खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड किया, फिर क्या किया, फिर मोर ऑटोनॉमी का डिमांड किया, तो फिर क्या क्या सेपरेटिज्म का डिमांड किया। तो बहुत सारा फेजेस हमारे रीजनल पार्टीज ने देखा है। सी, फ्रॉम सेपरेटिज्म टू ऑटोनॉमी and now towards entering into mainstream national policies। के पहले में हम लोग ने देखा सेपरेटिज्म, सेकंड पॉइंट में देखा कि हम लोग को ऑटोनॉमी दे दो, एंड थर्ड में क्या था कि ये लोग ने ये दोनों ही चीज मतलब मना कर दी थी, एंड इनका मेन काम क्या था कि हम मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स में कैसे आए। सो कोलिएशन पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन नेशनल पॉलिटिक्स। तो अभी आप लोग भी सोच रहे होगे कि ये तो रीजनल पार्टीज है, फिर मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में कैसे घुस रही है? तो बच्चा कोलिएशन के वजह से, कि दूसरी रीजनल पार्टीज के साथ कोलिएशन में आते हैं, एंड इस तरीके से उनका जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। In India, we have many regional parties. It is not possible to know about all such parties in this chapter। कि ये तो थोड़े थोड़े के बारे में हम लोग को यहाँ पे बताया, ये जो सारे बताए ये थोड़े थोड़े के बारे में बताया, क्योंकि सारों के बारे में बच्चा जानना इट इज वेरी डिफिकल्ट। कितने स्टेट्स है हमारे पास? 28, तो 28 29 के हर एक थोड़ी पार्टी के बारे में आपको बताएंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज अ लिटिल बिट difficult, sorry। We will study some parties as representative of India's east, west, north and south regions। ठीक है, कि हर एक रीजन के वाइज हम उनका रिप्रेजेंटेटिव पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सी some major regional parties are shown below। तो शिवसेना बताई है, उनके बारे में बताया कि कभी फॉर्म हुई थी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो यहाँ पे अभी रीजनल पार्टीज के बारे में सम रीजनल पार्टीज, सारे ही नहीं बताए रीजनल पार्टीज, पर थोड़े थोड़े के बारे में बताया। तो इफ यू सी शिवसेना, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोटेक्शन मिलना चाहिए मराठी स्पीकिंग लोगों को, प्रमोशन होना चाहिए मराठी लैंग्वेज का, एंड मेन तो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन। फिर 1995 में वो बीजेपी के साथ कोलिएशन में आए थे एंड पावर में आए महाराष्ट्र में, एंड वो अपना पावर भी बीजेपी के साथ शेयर करते हैं सिंस 2014। तो ये एक पार्टी हम लोग ने देखी। सेकंड रीजनल पार्टी किसके बारे में बताया है, शिरोमणि अकाली दल। ये एक दूसरी रीजनल पार्टी है जो पंजाब की है। कभी स्टैब्लिश हुई थी? 1920 में स्टैब्लिश हुई थी। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चा, कि जो रिलीजियस है और रीजनल आइडेंटिटी है उसको उसको फॉलो करना या उसको मेंटेन करना, ये इनका पावर, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। एंड मेन तो क्या है, कहाँ की है, पंजाब की है, तो उनका पावर सालों साल पंजाब में रहा है। इज इट क्लियर? ये दो रीजनल पार्टी समझी है, शिवसेना Yes, miss. एंड शिरोमणि अकाली दल। ओके, नेक्स्ट इज जम्मू कश्मीर नेशनल, और सबके सिंबल्स भी बताए हैं। तो शिवसेना का तो आपको पता है, बो एंड एरो है। शिरोमणि अकाली दल का समथिंग लाइक ऐसा है, वेट मशीन, मतलब वो वेट का है, एंड कुछ पंजाबी में शायद कुछ लिखा है, उनका ही टीम का मतलब पार्टी का नाम लिखा होगा। सी, नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये भी बच्चा कभी स्टैब्लिश हुई थी 1932 में, नाम से ही पता चलती है कौन से रीजन की है, कश्मीर रीजन की है। ये इनका काम क्या है कि ये प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑटोनॉमस स्टेटस। ये जो है कश्मीरी पीपल के इंटरेस्ट के कामों में, मतलब उनके कामों का, मतलब उनके पावर में, मतलब बेसिकली उनके जो ये है, उनके सारे जो डिमांड्स है, उनके जो लॉज है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए, उनका काम करती है। नाउ वी हैव आसाम गण परिषद। तो एज द नेम सजेस्ट, वो आसाम की रीजनल पार्टी है। उनका सिंबल एलिफेंट है। कभी डेवलप हुई थी? 1985 में डेवलप हुई थी। उनका काम क्या है, रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। मतलब डिस्प्लेस मतलब क्या, कि कोई अलग स्टेट से इनके वहां पे आया हो,
तो उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करना, उनका जो यूनिक कल्चर है उनको रिजॉल्व करना, लिंग्विस्टिक मतलब उनकी जो भाषा है उसको रिजॉल्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, एंड सोशल आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम है आसाम गण परिषद का। एंड ये आसाम में सालों साल से पावर में रही है। नेक्स्ट यू हैव द्रविड़ मुन्नेत्र कज़ागम, ये एक पार्टी है। सी Justice Party, a non-Brahmin movement in 1920 was transformed into Dravida Munnetra Kazhagam, a political party. ठीक है, तो ये पार्टी कभी बनी गई थी 1920 में। In 1944, Justice Party came to be known as Dravida Kazhagam. In 1944, a group separated from this party established another party, Dravida Munnetra Kazhagam. तो पहले द्रविड़ कज़ागम करके बनी गई थी, पर 1944 में इन्हीं पार्टी में से एक स्प्लिट हुआ, उन्होंने नया पार्टी बनाया जिसका नाम था द्रविड़ मुन्नेत्र कज़ागम. Another group separated from this party in 1972. वापस उसमें से भी वापस एक सेपरेशन हुआ 72 में, एंड फिर जो पार्टी बनी उसका नाम क्या गया, ऑल इंडिया लगा दिया. तो पहले जो द्रविड़ मुन्नेत्र कज़ागम था उसके पहले क्या लगा दिया, ऑल इंडिया. इनका राइट क्या है, ये तमिल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके जो मेंबर्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं. द पार्टी हैज सपोर्ट ऑफ वोटर्स फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर एक सेक्शन के सोसाइटी में से उनको सपोर्ट मिलता है. एंड इट वाज इन पावर फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इम्प्लीमेंटेड मेनी पॉलिसीज. ठीक है, इज इट क्लियर बच्चा, सो फार समझा है क्या है, रीजनल पार्टीज के Yes, बारे में miss. समझा. ओके. In India, we have many regional parties in every state that have influenced the state politics. ठीक है, तो ये तो कुछ ही पार्टी के बारे में हम लोग ने देखा, बट बच्चा इंडिया में ऐसे बहुत सारे रीजनल पार्टीज है. यहाँ पे भी वही है, चार्ट बताए है कि पहले 2009 में कितने सीट्स जीते, 2014 में कितने जीते. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो शिवसेना के ज्यादा है, शिवसेना ने 9 में जितना किया था 2014 में उससे ज्यादा सीट्स जीता है. बाकी सबके अगर आप देखो तो कम ज्यादा वैसे हो रहे हैं. ठीक है, चलो. So we have come to the end of the chapter. In this chapter we took a review of national and regional political parties in India, right? हम लोग ने national party के बारे में देखा, हम लोग ने regional parties के बारे में देखा. In the next chapter we will try to understand the importance of social movements in our life. के जो social movements होते हैं उनके बारे में हम कभी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. इज इट क्लियर बच्चा लोग, पूरा चैप्टर समझा है? एनीवन miss. विद एनी डाउट? No, No, miss. miss. Chalo, now we will quickly see the question answers. When people come together and participate in electoral process to acquire political parties, such organizations are known as Social organizations. social organizations. Perfect. National Conference is a party to dash state. कौन से स्टेट की है नेशनल कॉन्फ्रेंस? कश्मीर, जम्मू एंड ये देखो, जम्मू एंड कश्मीर. Justice Party, a non-Brahmin movement, was transformed into dash political party. कौन से पार्टी में? अभी जस्ट देखा हम लोग ने, was transformed into द्रविड़ मुन्नेत्र. Ravindra Kazhagam. Yeah, C option. Next, state whether the following statements are true or false. Political parties act as a link between government and people. Is it true or is it false? True. Why do you think so? Give reason for your answer, बच्चा. बराबर है, ट्रू है, परफेक्ट है. क्यों, कैसे लिंक फॉर्म करती है? Hello, miss. Miss, they put forth the problem of the people's. Hello, miss. या बराबर है, बराबर है. They put forth the problem And of the people and problems. try to, yeah, and सबका try माइक to बंद है शायद. and try to solve that problem. Perfect. Second, no, Keegan, my voice is audible to everyone. Siddesh, is it audible to you? Yes, miss. Yeah, maybe some issue from your Hello, side. miss. Keegan, it is an issue from your side, bacha. Next, political parties are social organizations.
और तो क्या आएगा रीजन, आंसर क्या आएगा बच्चा? What would be the answer? Political parties are social organization. अगर आप false देते हो तो आपको उसका रीजन भी देना पड़ेगा. तो what reason would you write बच्चा? हेलो बोलो. मिस। अरे कीगन को कोई बोलो ना. मेरा आवाज ऑडिबल है. प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स. उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा ना, इसके लिए वो हेलो हेलो कर रहा होगा. Am I audible to everyone else? यस Yes, मिस। miss. या तो प्लीज कोई चैट बॉक्स में डाल दो ना कि मैम का वॉइस ऑडिबल है. इट इज इशू फ्रॉम योर साइड. वरना वो बीच बीच में ऐसे हेलो हेलो बोलता ही जाएगा. ठीक है. सेकंड का आंसर हम लोग बोल रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोल रहे हो आप इसका आंसर? बताओ. स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्ट. हम लोग ने इतना पढ़ा ना पॉलिटिकल पार्टीज. आपको क्या लगता है ये ट्रू है या फॉल्स है? हेलो मिस। अरे यार, थैंक्स सिद्धेश. ठीक है. क्या आएगा इसका आंसर बच्चा? इसका आंसर ट्रू आएगा ना. पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ना. वो लोग क्या करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है. क्यों ऑर्गेनाइजेशन है? बिकॉज क्या करते हैं वो? इलेक्शंस फॉर्म करते हैं, उसमें जीतते हैं, खुद का गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं. राइट. तो इसका आंसर क्या आ सोशलिज्म जाएगा? को प्रमोट करते हैं. सॉरी. सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं. या सोशलिज्म को प्रमोट करते. फाइन. इसका आंसर ट्रू आ जाएगा. दैट यस, पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. कोलिशन पॉलिटिक्स लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. इसका क्या आ जाएगा बच्चा? फॉल्स. फॉल्स. क्यों? हम लोग ने देखा. कौन सी एग्जांपल दी थी? कौन से पार्टी का हेलो एग्जांपल था? हेलो कांग्रेस मिस। एंड अरे यार, दिस गाय. शिवसेना एंड बीजेपी। या कौन सा बीजेपी और शिवसेना, ए शिवसेना किधर आया रे बच्चा? कांग्रेस. शिवसेना. सॉरी कांग्रेस कांग्रेस। हाँ, शिवसेना तो रीजनल पार्टी है बच्चा. वो नेशनल पार्टी है. या शिवसेना. अरे मैं भी बोल रही हूँ शिवसेना. कांग्रेस और बीजेपी का एग्जाम्पल आप दे सकते हो इन कोलिएशन पॉलिटिक्स लीड्स टू इंस्टेबिलिटी वाला. कि ये फॉल्स है. ये दोनों ही पार्टी ने खुद का ग्रुप फॉर्म किया था एंड इंस्टेबिलिटी नहीं आई थी कंट्री में. शिरोमणि अकाली दल इज अ नेशनल पार्टी. फॉल्स. या कौन सी False पार्टी है? रीजनल पार्टी. परफेक्ट. रीजनलिज्म आप कहाँ पे लिखोगे बच्चा? रीजनलिज्म कहाँ पे देखा हम लोग ने? रीजनलिज्म का आंसर किधर आ जाएगा? नो वन. वेयर कैन यू फाइंड रीजनलिज्म वाला आंसर? बताओ. कौन से पार्ट में पढ़ा हम लोग ने? रीजनल या आइडेंटिटी डेवलप्स फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस. वो वाला. पेज नंबर 86. या 86 पे बच्चा किधर? मिस राइट हैंड साइड में फर्स्ट पैरा, 6th लाइन. Regional identity develops from the consequences about the development of region and feeling that बच्चा people बच्चा belonging. बच्चा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, कॉन्शियसनेस. Yes, miss. हाँ, कंसिक्वेंस मतलब प्रॉब्लम और कॉन्शियसनेस मतलब जो अंदर से इच्छा होती है ना वो. ठीक है. Yes. ओके. यहाँ तक ही है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, के आगे भी है? मिस ये नीचे वाला भी लिख सकते. इंटरेस्ट इन रीजन तलक. या
ठीक है, तो ये पूरा हम लोग मार्क कर देते, राइट। क्वेश्चन क्या था हमारा, रीजनलिज्म, राइट। तो यहाँ से आपको रीजनलिज्म पता चलता है। मेन क्या था कि जो रीजन के लिए, या तो आप ये वाला थोड़ा थोड़ा पॉइंट भी लिख सकते हो। देखो, the feeling of affinity developed about a language and region gradually turns into the identity consciousness and finally give rise to regionalism। बच्चा यहाँ से स्टार्ट करो, मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि आपको कैसे रीजनलिज्म आता है, तो यहाँ से स्टार्ट करो ये वाले पॉइंट से, और फिर ऐसे यू कैन राइट दिस एंटायर पॉइंट। सी बच्चा, ये वाला पार्ट से लेके यहाँ तक एंटायर वुड बी योर आंसर, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग इट? मिस वापस बताओ एक Yes, miss. यहाँ से दिस वाला पार्ट फ्रॉम पेज नंबर 86 लेफ्ट हैंड साइड लास्ट पैराग्राफ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, इंटरेस्ट ऑफ अ रीजन, ठीक है। Yes, miss. ओके, नेक्स्ट इज नेशनल पार्टीज। तो नेशनल पार्टीज का एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो थोड़ा सा ऊपर का डेफिनेशन बच्चा लिख लो नेशनल पार्टीज का, एंड जो सारे नेशनल पार्टीज के बारे में हमने पढ़ा ना वो, तो नेशनल पार्टीज आप क्या यहाँ से ही यू कैन स्टार्ट राइटिंग नेशनल पार्टीज। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में लिखो और पूरा पैराग्राफ लिखो, बट डरो मत, पूरा पैराग्राफ देख के पॉइंट वाइज लिखो। तो पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो 1885 में डेवलप हुआ था, कौन सा आइडियल मतलब ये था, डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाले आए, नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाया बिफोर इंडिपेंडेंस। थर्ड पॉइंट में लिखा बट आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी। ऐसे ऐसे करके पॉइंट वाइज सारे ही पार्टी के बारे में लिखना, ठीक है। तो एटलीस्ट राइट 4 पार्टीज तो भी, ठीक है, राइट एटलीस्ट अबाउट 4 पार्टीज। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट Yes, miss. miss. नेशनल पार्टीज 4 कोई भी लिखना बच्चा, बट पॉइंट वाइज लिखना सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू, आपको डिफिकल्ट ना हो। चलो, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो जो नीचे के 2 क्वेश्चन आंसर्स है ना वो आप होमवर्क में कर लेना, ठीक।